Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will start to revision of 7th class mathematics, Punjab School Education Board. First, I am going to discuss chapters which I will discuss in coming videos. First chapter, integer. Second chapter, fractions and decimals. Third chapter, data handling. Fourth chapter, simple equations. Fifth, lines and angles. Sixth, triangles. Seventh chapter, comparing quantities. Eighth chapter, rational numbers. Ninth chapter, parameter and area. 10th chapter, algebraic expressions. 11th chapter, exponents and powers. And powers. 12th chapter, symmetry. And 13th chapter, visualizing solid shapes. Now I am going to discuss in this chapter, in this video, first chapter that is related to integer. इंटीजर का मतलब क्या होता है? विदाउट डेसिमल वैल्यू. इंटीजर मीन्स विदाउट decimal values. Or we should be keep in mind that integers are the numbers which are used for counting forward as well as backward. The use of integers in our real life, it makes them very important in mathematics, and which they help in calculating the efficiency in positions, and for calculating more or less measures which to be taken for achieving better results. For this we will use integers. We can say that इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिनको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों में यूज़ कर सकते हो, और यूज़र का यूज़ जो हमारी रियल लाइफ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी रियल लाइफ में. यूज़र का यूज़ इंटीजर्स का यूज़, और ये हमारी जो भी पोजीशंस होती हैं उनकी उनमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए भी हेल्प करता है, और ये कैलकुलेट करता है कि कैसे मोर और लेस जो है मेजर्स लिए जाते हैं बेटर रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए. इंटीजर से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो नेचुरल नंबर्स है वो
कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स will start from 1 2 3 4, means it will start from 1, and after this all numbers are called natural numbers. And you whole number whole numbers start from 0. After this all numbers called whole number. And we can say that numbers which are used for counting, these are called natural numbers, 1 2 3 4. And all natural numbers when start from 0, then it is called whole numbers. You can see here 0 1 2 3 4 like this. But these numbers cannot help us to solve our daily life problems, so we will study integer. And integer is a collection of whole numbers and negative of natural numbers. Integers is a collection of whole numbers, negative of natural numbers. You can say that -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. From 0 to 4, these are called whole number. From 1 to 4 called natural number. And when we include negative numbers also with the whole numbers, then whole portion is called integers. Means इसमें इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो सभी नंबर्स आ जाते हैं. और बट ध्यान रखना है विदाउट डेसिमल नंबर्स को ही हम इंटीजर्स कहते हैं. जो विद डेसिमल्स नंबर होते हैं उनको इंटीजर में काउंट नहीं किया जाता है. नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन line. This is a number line and center point is a 0. And this from this 0 in your right side, all numbers are called natural numbers. And from left of 0, this is a negative numbers, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. ठीक है, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन integer. Absolute value of an integer is the number value of example you can take a, regardless of its sign, and it is denoted by like this. When we write inside of these two lines, that number is called absolute number. You can say when we write here 5 inside of these two lines are called modulus lines. You can say this is a modulus of 5. Modulus of 5 is called absolute value of an integer. And this modulus sign shows that in between these modulus, if we write negative number, that will be equal to positive number. You have to remove you will remove the minus sign from this due to the modulus of symbol. And absolute value of an integer is called when we when we remove the negations from with the help of modulus, we will call that is absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की हम उसे कहते हैं जब हम इसे ऐसे टू लाइंस के बीच में कोई नंबर लिखा होता है,
ये टू लाइंस जो डाली हुई हैं इनको हम मॉडुलस बोलते हैं। इसके बीच में अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ we will compare. For example, you have given -7 and 0. Always think that zero's left side negative number and zero's right side positive number. You should keep in mind that कि जो पॉजिटिव नंबर है when the number going to forward from left to right they will be increase, they will be increasing form, but negative number from 0 from left, from right to left they go, they will be decreasing. That means if here given 1, here given -1, -2, -3, 2, 3. Here smallest, this number is a smallest number and this number is a greatest number. So if we have given -7 and 0, which value will be greater? 0 is greater. You can say 7 is less than 0. This symbol is used for less than or greater. जिस साइड पर जिस जिस नंबर की तरफ इसका मुंह ऐसे ओपन है वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, -7 क्या है, लेस देन है 0 से। और अगर आपके पास नंबर गिवन है मान लो -3 एंड -13, अब इसमें से कौन सा छोटा और बड़ा होगा, स्मॉलर और ग्रेटर कौन सा नंबर होगा? मैंने आपको बताया था कि 0 के लेफ्ट साइड पर जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो अगर आप नंबर लाइन के ऊपर चेक करोगे तो यू कैन सी -1, -2, -3, -4 अप टू -13. That means -13 is a smallest number and -3 is a greatest number. So here you can see -3 is greater than -13. Now next, if you have given numbers, you have to find integer numbers between -5 and +5. How to find? You can find with the help of these number lines 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5. These are integer numbers which will come between -5 and -1. You can write these numbers are integer numbers which come between -5 and 5. How to write integer numbers in ascending order? Ascending or descending order. And descending order. For example, you have given 0, -7, 19, -23, -3, 8 and 46.
In ascending order, you have to write smallest number. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सबसे नेगेटिव नंबर में जो सबसे राइट पर नंबर लेफ्ट साइड पर नंबर आता है वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो -23, क्योंकि ये देखने में बड़ा है बट माइनस के कारण ये छोटा हो गया सबसे। -23, -7, देन -3, देन 0, देन 8, देन 19, देन 46। ये हमारा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? इसका रिवर्स, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उससे छोटा नंबर, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा आ जाएगा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। मीन्स जब आप ग्रेटर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट topic. In this topic I will discuss about how to add two integers. For example, you have given 10 plus 23. You can easily add. This is 33. But you have given -15 plus -32. Then how can you add? You can add by this -50 plus minus 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 plus. Symbol will be greater value. Greater value here 50, 50 के आगे क्या नंबर साइन है? माइनस, तो माइनस का साइन आ गया। याद रखो, प्लस प्लस का मतलब होता है आपने प्लस करना है, प्लस माइनस का मतलब माइनस करना होता है, माइनस प्लस का मतलब भी माइनस होता है। जब माइनस माइनस सिंबल आ जाए तो उसका मतलब प्लस करना है। क्या करना है? डू। और सिंबल कौन सा लगाना है वो कैसे पता चलेगा आपको? उसके लिए आपको माइंड में रखना है, प्लस वाले में तो प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस और माइनस प्लस में आपने याद रखना है कि जो ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर नंबर होगा, उसके आगे जो भी नंबर साइन पड़ा है, ग्रेटर नंबर के साथ जो सिंबल पड़ा है, सिंबल प्लस माइनस में से जो भी है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, अगर कुछ नहीं है तो प्लस हुआ, अगर अगर माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो प्लस आएगा आपकी स्टेट यहाँ पर सॉल्व करते सिंबल। इसमें भी सेम, बट माइनस माइनस में करना तो प्लस है, साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे? इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो माइंड में भी रख लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। जब आप दो नंबर का, ऐसे दो नंबर्स जो इंटीजर हैं उनका सम करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? सम ही आता है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये आपको फिलिप्स में भी पूछे जा सकते हैं। इज कॉल्ड इंटीजर। जस्ट अ मिनट। इंटीजर
ठीक है। मीन्स अगर आपने एक नंबर 2 लिया, दूसरा नंबर आपने ऐसे लिखा +-4 लिया, तो उसको जब सोल्व किया +-4 सॉल्व किया, 4 में से 2 गए 2, बड़ी रकम के आगे साइन माइनस का है तो -2 आंसर आ गया। तो ये क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हो, अगर इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a प्लस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप a में b प्लस करते हो और अगर b में a प्लस करते हो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक 5a एंड b 8 प्लस 5a, दोनों को प्लस किया, दोनों 13 आ गए। दैट मीन्स कि हेयर वी इम्प्लीमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रूल क्या है, अगर आप a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रख के सोल्व करते हो, या आप a प्लस बी को ब्रैकेट में रख लेते हो, बाहर प्लस सी कर देते हो, तो आंसर सेम आना चाहिए। अगर तो इस इक्वेशन को ऐसे जैसे मैंने लिखा है, अगर ऐसे आप कोई नंबर को सॉल्व कर लेते हो तो समझो वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट है। फॉर एग्जांपल, a गिवन है 5, b गिवन 8, c गिवन है 3। a की वैल्यू 5 फिल की, b की वैल्यू मैंने 8 फिल की है और c की वैल्यू 3। अब अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। 8 और 3 कितना होता है 11, और 5 और 8 कितना होता है 13। दोनों को अगर प्लस करते हो आपके पास 16 इक्वल टू 16 आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट है। आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। बोर्ड मास का रूल है, फर्स्ट आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में भी आपको याद रखना है, फर्स्ट आपके पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, फिर आपके पास कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होएगी, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी। और डिवीज़न, डी फॉर डिवीज़न, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे ये रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, सॉल्व करते समय। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या बता रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर में, फॉर एग्जांपल ए मैंने एक नंबर लिया, उसमें अगर ज़ीरो प्लस करती हूँ या जीरो में किसी नंबर को प्लस करती हूँ, मेरे पास नंबर ए ही आ रहा है, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने 5 में ज़ीरो प्लस किया या ज़ीरो में 5 प्लस किया, आया तो मेरे को 5 ही है, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एडिटिव इनवर्स,
एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, इसमें आपके पास एक नंबर नेगेटिव दिया है, एक पॉजिटिव दिया है। आपको सॉल्व करोगे तो ज़ीरो ही आएगा आपके पास आंसर, चाहे आप पहले नेगेटिव प्लस पॉजिटिव कर दो, पहले या पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव नंबर को ले लो, सॉल्व करने के बाद वो ज़ीरो ही आएगा। फॉर एग्जांपल -5 + 5 दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, 5 + -5 दैट इज ऑल्सो ज़ीरो, बिकॉज प्लस माइनस माइनस और 5 में से 5 गए, ज़ीरो ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। नाउ हम क्वेश्चन करेंगे अब सोल्व इससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन ए क्वेश्चन इन ए क्विज, मनजीत सिंह scored 65, -30, 25, whereas Ramandeep scored -30, 65, 25 in 3 rounds. Find who scored better. And what conclusion do you draw? क्या कहता है, एक क्विज है जिसमें मनजीत सिंह ने इतने नंबर लिए हैं और रमनदीप ने ये नंबर स्कोर किए हैं 3 राउंड्स में, किसका बेटर स्कोर है, आपको कंक्लूजन निकालना है। फर्स्ट आपके पास लिखोगे मनजीत सिंह स्कोर 65, -30, 25। हमें इसका क्या करना है, एडिशन, तो कोमा की जगह पर प्लस साइन डाल दो। यहाँ पर मैं ब्रैकेट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि माइनस का सिंबल भी है, +25। नाउ सॉल्व इट, प्लस माइनस -25। यू शुड, अगर तो आपने इनको ऐसे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे, तो राउंड ब्रैकेट तो सॉल्व होगी। अब आपके क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है इन दोनों को। कितना आ गया, 35 + 25, 60 आ गया। लेकिन अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाली हुई है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, -30 + 25 आ गया, तो पहले आपने प्लस वालों को प्लस करना है, ये आ जाएगा 90, देन आपने 30 उसमें से माइनस करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। क्लियर, ये दो मेथड मैंने बताए हैं, दोनों सही है, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। रमनदीप, रमनदीप के स्कोर हैं -30, 65, 25। -30 को ब्रैकेट में ले लिया हमने, +65 + 25, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया। -30 प्लस, सॉल्व करके कितना है 90, जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस, 90 में 30 के 60। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि दोनों मंजीत एंड रमनदीप स्कोर्ड सेम, वी कंक्लूड दैट एडिशन ऑफ इंटीजर इज एसोसिएटिव। यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, जो एडिशन है वो किस टाइप की है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स आर एसोसिएटिव।
Next question. 15 minus minus 8. माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया 23. -3 माइनस इन ब्रैकेट 21 -3 प्लस माइनस माइनस 21 माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का. सेम प्रॉपर्टी क्लोजेस के ऊपर सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, बट आपने ध्यान रखना जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्यूमिटेटिव एंड एसोसिएटिव both not implemented, not implemented. ओके, मीन्स मान लो आपने ए लिया 7 और बी ले लिया -3 या प्लस ले लो जैसे मर्जी, और ए माइनस बी आप कर रहे हो. ठीक है, 7 माइनस -3 किया, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 हो गया. अगर आप बी माइनस ए करते हो -3 -7, तो -10 आंसर आ रहा है आपके पास. तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, इट मीन्स a minus b not equal to b minus a. So we can say here we cannot implement commutative. Just like this, we cannot implement associative. Like this, a plus b plus c equal to a plus b in bracket plus c. For example, you have given a 5, b 3, c 8, 5. We have to implement here minus. So we will take, instead of plus, we will take here minus symbol. We have to do subtraction, so that's why we will take here minus. 5, 3 minus 8, 5 minus 3 minus 8. First of all, you have to solve this bracket. 8 minus 3, 5, and symbol is minus, minus minus plus 5. 5 minus 3, 2, and symbol will be plus, minus 8. 5 plus 5, 10, and 8 minus 2, 6, symbol minus, and this is not equal to. So that's why we can say subtraction of integers is not associative. And you can also keep in mind that additive identity is not possible in subtraction case. Means if you can say a minus 0, that is a, you cannot say that a 0 minus a is equal to a, because 0 minus a is equal to minus a. So that's why it's not a implement for every integer additive inverse identity in case of negation. Now I am going to solve some sum. For example, you have to find value of -3 plus 7 plus -8. Solve this by opening bracket, -3 plus 7 plus minus minus, and first solve plus 7 right here
and minus minus plus, that is 11, symbol will be minus. Plus minus minus and 11 minus 7 4, and symbol will be value of greater, that is equal to 1 11, and 11 in front of 11 we can see sign will be minus, so that's why we will take here minus symbol. Now next I will take some minus 32 minus 11 plus minus 25 plus 27 minus 13 plus minus 7 minus 32 minus minus plus plus minus minus plus 27 minus 13 plus minus minus. Now write all positive numbers together and all negative number together. 11 plus 27, then minus 32 minus 25 minus 13 minus 7. Add these numbers, add these numbers. 8, 38. Now you can see here minus 32 minus 25 minus 13 minus 7. 2 or 5 7, 7 plus 3 10, 10 plus 7 17, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, minus 77, and plus minus minus 17 minus 8 9, and 6 minus 3 3, and the greater values sign will be minus. Minus 39 is your answer. Now I will solve some statement sums. For example, you have given the difference between two integers is minus 10 if first integer is 17, then find the other integer. How to solve this? First of all, you have to write suppose the other integer equal to x. Now, according to question, difference between two integers, that is equal to minus 10, means first integer minus second integer equal to minus 10. First is given 17. Second integer, that is equal to x, and minus 10. Minus x is equal to minus 10 प्लस 17. जब लेफ्ट साइड टू राइट साइड कोई वैल्यूज जाती है तो सिंबल चेंज होता है, प्लस चेंज इनटू माइनस, माइनस माइनस प्लस 27, minus cut with minus, and you will find answer will be 27. Next topic is multiplication of
integers. There are two types: multiplication of integers with same sign. Multiplication of integers with different sign. For example, you have given 18 and 12 and you have to find product. Find product. How to solve it? You can solve it 18 multiplied by 12, that is equal to 216. But this question you can solve by another method like this: 10 plus 8, 18, 10 plus 2, 12. Now take the 10 common, 8, just a minute. First you have to multiply 10 by 10, then plus 8 multiply by 10, then 10 multiply 12 2, then 8 multiply 2 and write in brackets. Ten tens are 100, 8 tens are 80, 10 twos are 20, 8 twos are 16. अब ऐड कर दो इनको तो 216 आपके पास आ जाएगा आंसर। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड है। Now next, if you have given like this statement, minus 15 multiply minus 2 multiply minus 5 multiply 6. Here you have to write this in brackets so that you can easily solve. Minus 15 multiply minus 2 in one bracket, minus 5 and multiply 6 in one bracket. First minus 15 into minus 2, minus 5 into 6, माइनस माइनस खत। दो माइनस के साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, इवन में अगर माइनस के सिंबल है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। 15 टू ज़ा 30 मल्टीप्लाई 6 5 ज़ा 30, बट साइन माइनस का रहेगा क्योंकि इसके साथ प्लस का सिंबल है। और दोनों को जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 900 माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई का। अगर लेफ़्ट साइड को वेरीफाई करना है राइट के साथ तो कैसे करोगे?
minus 20 multiply in bracket 15 plus minus 5 and equal to in square brackets in round bracket minus 20 multiply 15 then plus in square bracket in round bracket 20 multiply minus 5. Now take the left side minus 20 multiply 15 plus minus 5. You will solve this. First you have to solve square bracket 15 plus minus 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 20 15 minus 5 10 then minus 20 multiplied by 10 that is equal to minus 200. Now take the right side minus 20 multiply 15 plus minus 20 multiply minus 5 equal to minus 20 multiply 15 plus minus 20 multiply minus 5. 15 to 20 is a 300 20 माइनस माइनस ख़त्म 100 यहाँ पर प्लस का सिंबल प्लस माइनस माइनस 200. You can say here left hand side equal to right hand side. You should keep in mind that any number, if any number is multiplied by 0, that will be equal to 0. Any number if multiplied by 1, that will be equal to number. Now one sum I have discussed in which we use property, product property, distributive property. You can say 15 multiply minus 20 plus minus 20 multiply minus 5. ऐसे क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि कॉमन क्या है. दोनों में कॉमन माइनस 20 है, उसको बाहर निकाल लो और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालो. मल्टीप्लाई का साइन भी बाहर कॉमन आ गया. 15 और बीच में साइन प्लस का रह गया, इधर माइनस का साइन रहता है. माइनस 20 को एज इट ऐसे लिख लो, प्लस माइनस माइनस फिर माइनस 20. 15 माइनस 5 10 होता है. माइनस 20 जब आपने एक ही लाइन में इक्वल टू का साइन लेना है तो यहाँ पर एरो का सिंबल बना लो. माइनस 20 मल्टीप्लाई 10 दैट विल बी इक्वल टू 200. नाउ next topic is division of two integers. It is also divided into two parts. Same sign और डिफरेंट साइन. जैसे मल्टीप्लिकेशन में था वैसे इसमें भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास गिवन है 20 डिवाइड बाय 5, आंसर 4 आ गया. आपने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड करके देख लिया, वो आपके पास 4 आ गया. बट
ये तो हो गया सेम साइन के साथ, है ना। एक और एग्जांपल सेम साइन की, जैसे -15 डिवाइड -3 है और आंसर आ गया 5। 15 को आपने 3 से डिवाइड किया, 15 आ गया और माइनस माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर साइन डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू आपके पास -36 है, दूसरी वैल्यू प्लस में दी हुई है, तो उस केस में क्या होगा, आपने डिवाइड किया 12 के साथ, 12 3 ज़ा 36 होता है। अब 3 तो यहाँ पर लिखना है, लेकिन जो साइन एक प्लस एक माइनस का है, आपने माइनस का सिंबल डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि वन ओड में आ रहा है। अगर साइन माइनस के ओड नंबर में आते हैं, ओड नंबर्स में है, तो साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। अगर इवन में माइनस के साइन है 2 4 6 ऐसे, तो प्लस रहेगा। और जहाँ नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 125 डिवाइड 5 डिवाइड -1, तो कैसे सॉल्व करना है। 125 डिवाइड 5 को 1 से डिवाइड किया, कितना आया, माइनस के 5 आ गए। फिर 125 को -5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25 माइनस में कैसे आया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास बस इतना याद रखना है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0 डिवाइड बाय -5 ले रहे हो, किसी भी जीरो के साथ, किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करने पर आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड 1 के साथ करते हैं तो वो वही नंबर आएगा। अगर आपने किसी भी नंबर, अगर माइनस के नंबर को माइनस के 1 के साथ डिवाइड किया तो प्लस का नंबर आएगा। अगर नंबर प्लस में है और डिवाइड -1 के साथ कर रहे हो तब भी माइनस में आंसर आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो नंबर पॉजिटिव वाला आएगा। ये बातों का ध्यान रखना है। सेम नंबर को सेम नंबर के साथ अगर डिवाइड करते हो, साइन प्लस का है तो 1 आंसर आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर नेगेटिव है और डिवाइड कर रहे हो तो माइनस में आंसर आएगा 1, बट सेम नंबर है इसलिए। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, 12 माइनस 8 प्लस 27 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 8 -7 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 12 माइनस 8, पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होएगी, 2 8 ज़ा 16 -7 एज इट लिखोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आपने ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना है। 16 में से 7 गए 9, स्टेप वाइज चलना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अब आपने डिवाइड का सिंबल पहले सॉल्व करना है, तो 27 को 9 से डिवाइड किया 3 आएगा, क्योंकि 9 3 ज़ा 27। फिर आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना, 8 प्लस 3 11 होता है और 12 में से 11 गए 1, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक बार मैं सिर्फ जस्ट आपको रूल्स रिवाइज करवा देती हूँ। क्या रूल्स हैं, यू शुड कीप इन माइंड दैट द नंबर्स नेगेटिव
0 positive numbers or called integers. Integer numbers 1, 2, 3 are called positive integers. Minus 1, minus 2, minus 3, these are called the negative integers. 0 neither positive nor negative. To add two numbers with same signs, we add their numerical values and put the sign of addends with sum. And to add two integers with different signs, we take the difference of their numerical values and put the sign of integer with greater numerical value. For any integer a, we have add a plus minus a equal to 0. We call minus a is the additive inverse of a. In case distributive law of multiplication, we will use a multiply bracket start b plus c bracket close. In a distributive law, we use this law a multiply b plus c. How to distribute? You have to write two brackets and with sign of this sign right here plus, and a multiply b in one bracket, then a multiply c in another bracket, and solve these equations. First this bracket solve, then second bracket solve, then add. This is called the distributions law of multiplications over addition. And you should keep in mind that closure property will be implement addition, subtraction, multiplication and division. In division we cannot implement closure property. Cumulative property will be implement on addition, on multiplications, but cannot be implement on subtraction and division. Associative property will be implemented on addition, multiplications, but not implemented on subtraction and division. And identity property will be implemented on addition, subtraction, multiplication, but cannot implement on division. This is the first chapter which I have discussed in this video. Now in next coming videos I will discuss next chapter, that is related to fraction and decimals. Thank you.